coefficient new power reduces by 1, new power increases by 1, and then that becomes denominator. Easy. If derivative of sin x is cos x, then can we say integration cos x dx is sin x plus c. Barabar. Next, derivative of cos x is minus sin x. Therefore, integration of sin x is minus cos x plus c. Derivative of x is 1. So integration of 1 is x plus c. Yes or no? Integration of 1 is x plus c. If it is an integration of 1 dt, 1 d theta, 1 dy, 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. इंटीग्रेशन dx is इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन dy is प्लस सी तो सब में लिखना है. इट इज मैंडेटरी. अभी वो उसको भूल जाओ कि सी तो सब में लिखना ही है, वेदर यू स्पीक अबाउट इट और यस और नो. सी कब नहीं लिखना है? एवरीवेयर व्हाट इज सी? C is constant of integration, and when is it to be written? It is to be written when you are talking about indefinite integrals. Indefinite integrals. Mathematical operation को integral बोलते हैं, and phenomenon को integration बोलते हैं. Right? It is something like memory is a virtue. To memorize is a process. Something like that. Yes or no? Now, start here. Let us continue. Yesterday we did work done ka basic 5 things. Fatafat. What is work done? It is force dot displacement. Force of 1 Newton producing a displacement of 1 meter in a body in the direction of the force is called work. एक फॉर्मूला था Fs cos theta. दूसरा फॉर्मूला था Fx Sx plus Fy Sy plus Fz Sz. Yes or no? Likewise. Power also we did yesterday. Was it force dot velocity? Was it Fv cos theta? Was it Fv plus Fv plus Fv x x y y z z? Yes or no? First you should talk about unit, I mean formula. Then you should talk about definition. Then you should talk about unit. What is the unit of work? Unit of work is kilogram मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज जूल. मैंने जानबूझ के किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा. क्यों? सो दैट यू कैन राइट डायमेंशन. वेरी गुड. व्हाट इज द डायमेंशन? m1 l2 p minus 2, and it is a scalar or a vector? Scalar. Right? So 5 things: definition, formula, unit, dimension, and status. Status in the sense it is a scalar or a vector. And if it is a vector, you must talk about the direction. Here there is no question of being vector. चलो next one. Power. Power is work upon time. तो ऊपर वर्क का यूनिट लिखा है मैंने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. इधर आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. Yes or no? And that is known as watt. That is known as watt. What will be the dimension? m1 l2 p minus 3. Yes or no? m1 l2 t minus 3. What about the status? Can I say scalar again? So this was a quick revision of what we did yesterday. Now, absolute minute details. What do you mean by work done by variable force? That means if this is the particle, on this particle, every time the force acting is different. Every time the force acting is different. तो सोच के बताओ, work done is force into displacement is sensible? कि small amount of work done is force into small amount of displacement is more sensible. Always. इसको क्या बोलते थे याद करो बेटा? Was it infinitesimally small amount of work? इसका मतलब ये हुआ कि if the body is traveling suppose along this path, right? And if it is going from this point to this point, let us say this is start and this is end, right? तो मतलब ये बॉडी यहाँ से यहाँ जाने वाला है. Of course, the shortest displacement will be going to be this. Yes or no? But this is the path available. This is the path available. Apply common sense. अगर मुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जाना और मुझे ढूंढना है कि वर्क कितना है, राइट? तो मैं ऐसे जा सकता हूँ,
स्टेप्स है, मैं ऐसे जा सकता हूँ, मैं माउंटेन चढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे जा सकता हूँ लिफ्ट से, कैसे भी जाऊं, कैन आई से अल्टीमेटली हाइट कवर्ड बाय मींस द परपेंडिकुलर हाइट। ये मेरा प्रॉब्लम है कि ये मुझे zigzag जाना पड़ रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे zigzag जाना पड़ रहा है, बट अल्टीमेटली व्हेन आई राइट potential energy, what is potential energy? mgh. And what is the meaning of h there? It is the perpendicular height. It is the perpendicular height. See, when you say height of Mount Everest is 8848 meter, तो वो 8848 मीटर आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी से चढ़ना पड़ता है. Otherwise, frankly speaking, if you say 8848 meter, it is less than 10 kilometer, right? 10 किलोमीटर मतलब अबाउट 15 to 17,000 स्टेप्स. तो अगर आपको कोई बोले कि आपको 15 to 17,000 स्टेप्स चलना है हॉरिजॉन्टल रोड पे, it will be a very easy job for you. But when you climb a mountain, you are going against gravity, right? As you go away and away and away from the surface of the earth, oxygen levels go down, breathing becomes very difficult. Yes or no? So यहाँ पे 10 किलोमीटर चढ़ना इतना इजी नहीं है. Yes or no? आपको कोई 10 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल वॉक बोले तो भले ना आप आराम से भी चलोगे तो भी 2-2.5 घंटे में पहुंच जाओगे. Right? Climbing Mount Everest is not a joke. Right? It is in fact lifetime achievement if you do so, because we are doing this against hardship. So when we write W is equal to mgh, what is the meaning of h? It is the perpendicular height. ध्यान रखने का बेटा. It is something like this. If I give you a cone, right, and if you are going from this point to this point, now this is your problem that you are going this way, because this is how the slope is, this is how the mountain is. But that does not mean that work done by you is mgl, whereas is the slant height of the cone. It is mgh only, right? Work done is mgh. So what is the meaning of h over here? It is the perpendicular height. So the one very basic thing which we are learning now, if I am going from one point to the other point, say point A to point B, right? This is the starting point, this is the end point. Then the work done is force into displacement. But the most scientific way of talking about this is select two very close particles, very very close particles. जितना close ले सकते हो उतना, right? And over here, suppose force is acting in this direction, and the displacement is as small as you can think of, say dx. Say dx. dx का मतलब बोला सकता है infinitesimally small. What is the meaning of the word infinite? Extreme. What is the meaning of the word infinitesimally? Extremely small as you can think of. So now tell me, which is more sensible? Work is force dot displacement. This is more sensible. कि small amount of work is force into small amount of displacement. First one is better कि second one is better? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ first one wrong है. मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ first one is better. Right? एक बंदे को मैं बोलता हूँ कि ये 10 पेज पढ़ो और वो बंदा ऐसे पढ़ता है. और एक बंदा ऐसे पढ़ता है. Who is more accurate? Because that student is reading word by word, in depth, not leaving any chance. इसमें क्या होता है ना, आप थोड़ा फास्ट पढ़ते हो तो you may overlook some words, और पता चला उसमें एक वर्ड ऐसा आके गया कि वही अपने को नहीं समझा था. Right? But when you read एकदम line to line, word to word, you come to know कि हाँ यार ये infinitesimally word लाइफ में पहली बार सुना. चलो सर को पूछते हैं infinitesimally word क्या होता है. Right? जब हम लोग लेक्चर लेते हैं एक या दो बच्चे पूछेंगे ये वर्ड का मतलब क्या होता है. मतलब बाकी लोगों ने सुपरफिशियल रीडिंग किया था, इन डेप्थ रीडिंग नहीं किया था. Are you getting my point? So मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा आप पढ़ नहीं रहे हो, आप ज्यादा एक्यूरेटली पढ़ रहे हो. Right? Now I don't want DW, I want W only. So how will I get W from DW? Oh lovely, the last one. W is equal to integration of DW. W is? What is integration dx? ये कल जो मैंने पूरा गाना गाया इंटीग्रेशन के लिए, ये सिर्फ एक लाइन के लिए.
So you can understand how in-depth knowledge is required to understand this. So what is W? Integration dW. So is it integration F into dx? Right? इसको बोलते हैं work done by variable thing, because ये W नहीं है, dW है. dW is changing work, small amount of work, variable work you can say. So this is work done by variable force. Physics says that first you find out small amount of work. Right, now what you are doing? Small amount of work, 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 add all of them. याद करो, इंटीग्रेशन का मतलब था टू ऐड, समेशन का मतलब था टू ऐड. समेशन में था यू आर नॉट टेकिंग ऑल, इंटीग्रेशन में यू आर टेकिंग ऑल. दैट मींस व्हाटएवर स्मॉल पॉइंट कम्स इन बिटवीन, you are not ignoring that also. You are not ignoring that also. Please let me know. Have you understood this? Our knowledge of work, school level, force into displacement. Our knowledge of work, college level, F dot S. That means Fs cos theta. Now our knowledge further in depth. W is equal to F dot ds. That means it is F ds cos theta. आप S बोलो कि X बोलो कि Y बोलो कि Z बोलो, सब चलता है, because X is a displacement, Y is a displacement, Z is a displacement. According to kinematical equations, S also is a displacement. जब आप लिखते हो S is ut plus half at square, what is the meaning of A? Acceleration. What is the meaning of V? Velocity. What is the meaning of S? Displacement. Of course, followed by the word S. I mean the word first will come is linear. Yes or no? So what is work? Force dot displacement. What is small amount of work? Force dot small amount of displacement. Therefore, what is work again? It is integration of dW. What is integration dx? What is integration dW? बराबर. अभी मुझे यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखना है, तो what should I do? मैं वेरिएबल कौन रख रहा हूँ इसमें? चेंज कौन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट. सो कैन आई से वेरिएबल फोर्स बोलो कि वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बोलो? दोनों अलाउड है. याद करो, डॉट प्रोडक्ट इज ए बार डॉट बी बार या तो बी बार डॉट ए बार. राइट, तो आप डी एफ इंटू एक्स रखो तो भी ठीक है, एफ इंटू डी एक्स रखो तो भी ठीक है, बट एवरी मोमेंट वी आर चेंजिंग अवर डिस्प्लेसमेंट. तो एफ इंटू डी एक्स इज मोर सेंसिबल. अगर आपको इसको सी नहीं लिखना है तो व्हाट यू शुड डू? I am going from x1 to x2 because who is changing? X. That means your limits of integration are from x1 to x2. So when you say I am writing x1 to x2, that means you need not write C when you get your final answer. Please, please, please let me know. Have you understood what is work done by variable force? School level knowledge. Work is force into displacement. College level knowledge, work is force vector dot displacement vector. In depth, minute knowledge, dW is equal to F dot dx. That means dW is equal to F dx cos theta, and therefore W is equal to integration dW. W is equal to integration dW. ये पार्ट समझा बेटा? Right, ये हो गया. Now next is work done by several forces. Earth ball. Surrounded by moon, surrounded by Mercury, surrounded by Jupiter, surrounded by moon of Jupiter, which is Titan, surrounded by Saturn. That means it's not that Earth is only influenced by sun. Earth is influenced by moon also. You get high tide and low tide in the sea. It is because of the presence of the moon. It is because of the force of gravitation existing between the planet and the moon. Right? So when I say work is done on moon by several forces, means it is done by moon also, sun also, other planets also, the moons of those planets also, asteroids also. Right, there is an asteroid belt outside the earth, in the atmosphere, well outside the earth. Right, there is a Kuiper belt also. Right, that means so many things are influencing earth. Likewise us also. For example, between any two masses there is force of gravitation. Right, we are so many people. That means I am under the influence of force due to gravity of earth. I am under the influence of force due to gravity of you also. You are also under the influence of force due to gravity due to me. But the net force acting on our body must be zero right now. That means all these forces are in equilibrium. Is Earth completing one revolution around the sun in 1 year? Right? ये कभी आगे पीछे होता है? Right? ऐसा हुआ कि भाई length of the Earth this time is 372 days.
next time it will be compensated and it will be 358 days only. Never. Yes or no? That means Earth is in perfect equilibrium because of the forces around, right? Length of the day is 24 hours only. होता है कभी ऐसे 23 hours 59 minutes, पूरा आपका इंटरनेट टाइम गलत जाएगा. सोचो, पूरा इंटरनेट टाइम गलत जाएगा. मतलब वो एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए. They are so accurately measured by the scientists. Yesterday I mentioned about atomic clock. Remember? Atomic clock is accurate up to nanosecond. Nanosecond, 10 raised to minus 9 seconds, which is the jumping time of an electron from one orbit to the other orbit. The electron jumps so fast. Suppose I am giving you hydrogen atom. So the official house of the electron of hydrogen atom is first orbit. Now from outside I am giving energy to that electron in the form of heat. So that is called thermal excitation. The electron will leave the first orbit and may go to second orbit or third orbit or fourth orbit temporarily because it is receiving energy from outside. Now the situation is first orbit is empty and the electron is in second orbit or third orbit or fourth orbit, which is not allowed because this is unstable condition. आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था past में, I am standing, I am sitting and now I am sleeping. Where am I most stable? Sleeping. Exactly, because when I am standing my center of mass is here. When I am sitting my center of mass goes down. And when I am sleeping, my center of mass is closest to the ground. So amongst these three examples, where is my potential energy minimum? Sleeping. When I am sleeping, so I am most stable, right? When I am standing for 8 hours, when I am sitting for 8 hours, and when I am sleeping for 8 hours, where will I get tired quickly? Where will I get tired the most? Yes or no? That means potential energy is minimum is the condition of stability. Potential energy is minimum is the condition of stability. So now if I think about that electron of hydrogen atom in the first orbit, now it is excited, it is going to second orbit or maybe it is going to third orbit, depending on how much energy it is getting from outside. It will be stable there or unstable there. So to get the stability back, if it had gone from 1 to 2, it will come back from 2 to 1. If it had gone from 1 to 3, then it will come back from 3 to 1 or 3 to 2 and then 2 to 1. That means it will ooze out the extra energy. It cannot keep that extra energy with itself. आप जब food लेते हो तो आपकी body की need के हिसाब से लेते हो. Yes or no? If you take less food, it is undernutrition. And if you take more food, you will lose it out because your body cannot keep it. Yes or no? Your body needs particular amount of food for particular amount of energy. So sometimes overeating will cause indigestion because your body is not able to take it. You are losing your stability. Are you getting this? अच्छे से समझा? So now when I talk about work done by several forces, I will calculate work done by body number 1, say moon on earth. Work done by body number 2, say Mars on earth. DW3, say Jupiter on earth. Likewise, I will take as many readings as possible. And then when I add them, my answer is W. तो यहाँ पे W कैसे लिखते हैं? It is summation WI, where I is taking the value from 1 to n. इसको रीड कैसे करते हैं? ध्यान से सुनो. I is 1 to n का मतलब होता है this suffix is taking value from 1 to n. और इसको रीड कैसे करते हैं? जिधर जिधर I उधर उधर 1 प्लस जिधर जिधर I उधर उधर 2 प्लस 3 प्लस blah blah blah. Last number is n. Right? It should be dw1 plus dw2 plus dw3 plus blah 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 plus dwn. And therefore my answer is total W. ये हो गया W, total amount of work done. And this is by n different agents. ये मैथमेटिकल स्टाइल है लिखने का. मैंने कल समेशन भी इंट्रोड्यूस किया था और मैंने कल इंटीग्रेशन भी इंट्रोड्यूस किया था. समेशन कब यूज करते हैं? समेशन कब यूज करते हैं? When it is random. और इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? When it is continuous. रैंडम का मतलब क्या? नॉट ऑल. राइट? इधर आपने 1 के बाद डायरेक्ट 2 पे जंप मारा, फिर 3 पे जंप मारा, फिर 4 पे जंप मारा. आपने 1.5 या ऐसा कुछ नहीं बोला.
It is something like counting the number of students. Number of students cannot be decimal point, na? I have to take the head count. 1, 2, 3, 4, 5, blah, 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 49, 50. I will count this way. I cannot count this way. 1, 1.7, 2.9. Number of students cannot be counted like that. Is that clear? So what is work done by variable force understood? What is work done by several forces understood? दोनों का मतलब होता है complete your job in small parts and then take them together. That means this is the final work done by you. Sir, we won't take summation of DWI. D का मतलब बेटा small. D का मतलब small. Small amount of work done. Small amount of work done. मैं ऐसे बोलता हूँ बेटा कि इधर ये क्लास में 100 बुक्स पढ़े, 100 बुक्स. अभी मैं एक ही स्टूडेंट को बोलूँगा कि बेटा ये 100 बुक उठा के वो क्लास में रख दो, तो इट इज टू मच फॉर दैट स्टूडेंट. और मैं अभी एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे, सबको तो बेटा चाहते हो जरा 2-2 बुक लेके जाना और वो क्लास में रख देना. अल्टीमेटली माई पर्पज इज सर्व्ड और आई वांटेड टू शिफ्ट 100 बुक्स फ्रॉम दिस क्लासरूम टू दैट क्लासरूम, राइट? सो आई एम डूइंग इट इन small parts, right? You want to revise 7 chapters for Sunday exam. You are doing 1 chapter today, you are doing 1 chapter tomorrow, 1 chapter day after, and so on. 2 small chapters you are doing in 1 day, right? You know that bigger chapter will take time, tough chapter will take time. That means you are doing your duty in small parts. So ultimately you are prepared for the final day. Are you getting this? ये पार्ट समझा बेटा? Super sure. इसमें सबसे important क्या है? ये नए टेक्निकल टर्म्स आ रहे लाइफ में, बस और कुछ नहीं. ये आपने स्कूल में देखा नहीं है कभी, राइट? सो आई एम रियली कॉन्फिडेंट दैट आई एम गोइंग सुपर स्लो. द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है बेटा? मैंने बोला ऐसे इधर प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना? ये पेज आपको इधर प्रिंट हो जाना चाहिए. ये जो कल इंटीग्रेशन लिखा था वो भी प्रिंट हो जाना चाहिए. अभी आपका जो बुक आएगा ना अभी, उसमें मैं ये सब हैंड रिटन नोट्स में मेंशन कर चुका हूँ, right? So you will get more number of examples there. Now next, work done graphically in terms of force and displacement. Applied common sense. Apply common sense. How do you find out area? It is length into breadth. It is product of 2 coordinates. What is the area of a square? Length into length. What is the area of a rectangle? Length into breadth. What is the area of a circle? Pi r square. तो अगर मैं इस सब चीजों का यूनिट पूछूं, यूनिट, तो आप क्या लिखोगे? Exactly. So this is graphical way of understanding work, and it is very easy, very cute, very cute. देखो मैंने क्या लिखा है? My first answer is in terms of force and displacement. Do I know the formula of work in terms of force and displacement? Yes. Now W is equal to Fx is more sensible कि dW is equal to Fdx is more sensible. बराबर. और एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ध्यान से सुनो. इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम, राइट? वर्क इज पावर इनटू टाइम इज मोर सेंसिबल कि dW इज इक्वल टू पावर इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज मोर सेंसिबल. वर्क का ये भी तो फॉर्मूला है ना बेटा? वर्क का ये भी तो फॉर्मूला है. पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इज पावर इनटू टाइम. So if you see work carefully, am I writing this as product of 2 things? Am I writing this as product of 2 things? So now, if I plot graph of force versus displacement, if I plot graph of force versus displacement here, on y-axis I am taking force, and on x-axis I am taking displacement, right? That means on y-axis I am taking F, and on x-axis I am taking X. Right? On y-axis I am taking power, and on x-axis I am taking time. Power means P, time means T. और ये ग्राफ मेरा बिल्कुल सेम है, एक ही ग्राफ है. ये ग्राफ ऐसा ही है, ये ग्राफ ऐसा ही है, एक ही ग्राफ है, सेम ग्राफ है. Because you know that work is force dot displacement फॉर्मूला सॉल्व करके ही हम लोगों को power is force dot velocity मिलता है. Am I right? I know work का फॉर्मूला. Therefore, I am dividing both sides by t. Therefore, this is giving me velocity, and therefore I am getting power. Right? Power is force dot velocity. Work is force dot displacement, and therefore power is force dot velocity. So work का formula solve करके मुझे power का formula मिलता है. Yes or no? So what is the perfect science behind this? एक छोटा सा एलिमेंट लो बेटा, एकदम छोटा सा एलिमेंट लो. मतलब
आपको ए से शुरू करके बी पे जाना था, उसके बदले आप पी से शुरू करके क्यू पे जाओ। आपको ए से शुरू करके बी पे जाना था, उसके बदले आप पी से शुरू करके क्यू पे जाओ। सो टेल मी हु इज दिस? माइंड यू दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं यहां से शुरू करके यहां तक गया। तो बेटा ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट। तो सोच के बताओ, if I mark these as x1 and these as x2, then what is this vector? dx vector. So proud of you, very nice, very nice. और यहां पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था, that force I am taking it as F. अब ये इतना ज्यादा चिंटू डिस्प्लेसमेंट है, इतना ज्यादा चिंटू डिस्प्लेसमेंट है कि if somebody is taking it as 1 millimeter and if somebody else is taking this as 1 micrometer, right? So 1 micrometer is a better choice. 1 micrometer मतलब it is like thickness of the hair. That means points P and Q are extremely close. So practically force over there is the same. Is that very very clear? Sure. सोच के बताओ बेटा ये shaded part क्या हुआ? Is the shaded part coordinate number 1 and coordinate number 2? एक मिनट, आपने y एक्सिस पे क्या लिया है? राइट आपने x एक्सिस पे अभी क्या लिया? ये कौन हुआ? y कोऑर्डिनेट। ये कौन हुआ? x कोऑर्डिनेट। इज इट लाइक x into y? Is it like length into breadth? Right, so this is called area under the curve. What is this called? And this area under the curve is the work done ki small amount of work done? Proud of you, very nice. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ढूंढना है, तो मैं यहां से शुरू करूंगा और यहां पे खत्म करूंगा, तो ये पूरा एरिया मैं शेड करूंगा। एंड कैन यू से दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन? समझा कि वापस बोलो? समझा, एकदम अच्छे से समझा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटा, ध्यान से सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। मैं आपको y एक्सिस पर फोर्स दे रहा हूं, मैं आपको x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने मार्किंग की 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये मीटर है, राइट? दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज -5 न्यूटन, दिस इज -10 न्यूटन। अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिया, सपोज मैंने आपको एक डायग्राम दिया, ये मैंने डायग्राम दिया, ये मैंने डायग्राम दिया, फिर मैंने ये डायग्राम दिया, ये मैंने ऐसा डायग्राम दिया और मैंने बोला वर्क डन ढूंढो। अभी कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा, ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? प्राउड ऑफ यू। व्हाट अबाउट दिस? क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है लेकिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सो इट इज लाइक x into -y, दैट मींस -xy। तो बेटा ये वर्क डन पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? कांट डिफाइन, यू नो व्हाई? अभी बेटा ये एरिया क्लोज नहीं, मतलब ये इंफिनिटी तक जा सकता है, आई डोंट नो, इंफिनिटी तक जा सकता है। तो एरिया अंडर द कर्व मतलब वो एनक्लोज्ड एरिया होना चाहिए ना। मैं आपको बोलता हूं कि ये सर्कल है, तो आप बोलोगे इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। अभी इतना पार्ट मैंने ओपन छोड़ दिया, तो आप इसका एरिया डिफाइन नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लोज्ड एरिया। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? ये क्लोज्ड है तब मेरे हाथ में टिका हुआ है ना। अभी अभी ये कहीं से भी खुल गया सपोज, राइट? ये कहीं से खुल गया ऐसा, इट विल फॉल डाउन। लॉजिक समझा? आप कड़ा पहन सकते हो, आप ये पहन सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज क्लोज्ड। इफ इट इज ओपन देन यू कैन नॉट डिफाइन इट। लॉजिक समझा? इसको आप स्क्वायर बोल सकते हो, यस, लेकिन इसको आप स्क्वायर बोल सकते हो? नो। इसको आप रेक्टेंगल बोल सकते हो? यस। इसको आप रेक्टेंगल बोल सकते हो? नो। इसको बोलते हैं अनबाउंडेड फिगर। अनबाउंडेड मतलब ओपन एरिया, इट गोज अप टू इंफिनिटी, यू कैन नॉट डिफाइन दिस। ये क्लासरूम का मैं वॉल्यूम डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये सीलिंग है ही नहीं, मतलब हम लोग टेरेस पे खड़े हैं,
अभी मैं बोलता हूँ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ माई टेरेस, यू कैन नॉट डिफाइन, यू कैन डिफाइन द एरिया बट यू कैन नॉट डिफाइन द वॉल्यूम बिकॉज इट इज ओपन टू स्काई ना मैंने लेंथ गिन लिया, मैंने ब्रेड्थ गिन लिया, व्हाट अबाउट हाइट ऑफ माई टेरेस, राइट? तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि डिफाइनेबल वॉल्यूम ढूंढो, मतलब मेरे टेरेस में जितना हाइट तक ब्रिक्स है मुझे सिर्फ उतना ही गिनना है फिर, राइट? अदरवाइज यू कैन नॉट डिफाइन इट। समझा सबको यहाँ तक? तो सबसे पहले क्या करने का, यू टेक टू स्मॉल टू वेरी क्लोज पॉइंट्स rather. What is this called? Infinitesimally small element of x kitty. x kitty. इसका परपेंडिकुलर जब बेटा आप x एक्सिस पे बनाते हो तो x एक्सिस पे कौन है? So what is PQ? PQ is what? It is infinitesimally small element of displacement की टाइम। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं मालूम है? उसके बिल्कुल बाद वाले आर्टिकल में मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा। ये पॉइंट को मैं T1 बोलूंगा क्योंकि टाइम, इसको मैं T2 बोलूंगा क्योंकि टाइम। दिस इज एरिया अंडर द कर्व, राइट? So what is area under the curve? Is it this time in terms of time? Is this time in terms of time? Is it this? लेकिन वर्क डन तो ये भी है, बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम भी है एंड वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी है। तो मेरा प्रीवियस ग्राफ आप ध्यान से देखो बेटा, एकदम रेप्लिका दिख रहा है कि नहीं, आइडेंटिकल ट्विन्स दिख रहा है कि नहीं, राइट? बट मीनिंग इज डिफरेंट। दिस इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम। यस और नो? तो व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व? वर्क डन की स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। फैंटास्टिक। आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ढूंढना है तो क्या करना चाहिए? इन प्लेस ऑफ PQ यू टेक AB। यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ। अब आप बोलते हो कि आपने 10 सेकंड में कितना वर्क किया? 10 सेकंड में। तो फिर इसको 0 टाइम गिनने का और इसको 10 गिनने का, पूरा एरिया लेने का, राइट? लेकिन मैं 0 से 10 सेकंड तक गया था और एग्जामिनर मुझे पूछता है कि ना बिटवीन 4 to 6 सेकंड हाउ मच वर्क इज डन बाय यू। मींस आई शुड इग्नोर 0 to 4 एंड आई शुड इग्नोर 6 to 10। आई शुड जस्ट कंसंट्रेट ऑन 4 to 6 only। लॉजिक समझा? एकदम ध्यान से सुनो। इसका वर्क डन कैसे ढूंढते हैं? इज दिस अ ट्रायंगल? बराबर, तो इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढने का। इज दिस अ रेक्टेंगल? तो इधर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ढूंढने का। इज दिस अ ट्रेपीजियम? तो इधर एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम ढूंढने का। इज दिस अ ट्रायंगल अगेन? तो इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढने का। इसका एरिया ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। आराम से समझा बेटा? सुपर श्योर। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? It is half into base into height. So the base is 1, height is 5, 1 5s are 5, उसका half 2.5, ये एरिया आया बेटा 2.5। अभी ये वाला एरिया देखो, 1 और 2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 1, और ये फोर्स कितना है? -10। मतलब ये हो गया, ये ऊपर वाला था +2.5, ये हो गया -10, है ना? This is the area in the first quadrant. Area in the second quadrant negative होगा क्योंकि इसका y coordinate positive है, x coordinate negative। Area in the third quadrant positive होगा क्योंकि दोनों negative है, बराबर? और area in the fourth quadrant again negative। Positive into positive positive, negative into positive negative, negative into negative positive, positive into negative negative। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में एरिया पॉजिटिव होगा, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। चलो बेटा, इसका एरिया क्या आएगा? व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम? इट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो बेटा हाइट कितना है? हाइट कितना है देखो? 10। वेरी गुड। सो इज इट हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स? बाद में लिखते हैं। दिस इज 10, राइट? नाउ इफ यू सी पैरेलल साइड्स, दिस इज 2 to 5, तो ये एक साइड हो गया, एंड दिस इज 3 to 5। Yes or no? So can I say it is 2 plus 3? 2 plus 3. Yes or no? And this was 10. So is it 5 5s? इसका एरिया हो गया 25।
बोलो प्लस की माइनस, समझा बेटा? अभी ये ट्राइंगल है, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो ये इसका बेस हुआ साइज 1, ये इसका हाइट हुआ साइज 10, राइट? वो माइनस बाद में ले लेंगे हम लोग, राइट? तो इज इट हाफ इनटू 1 इनटू 10 मतलब 5, बोलो 5 लेने का कि माइनस 5? इसका एरिया हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो टोटल कितना एरियाज आया? 2.5 एंड 25, 27.5, 27.5 minus 10, 17.5, 17.5 minus 5, 12.5, समझा बेटा? सुपर श्योर। आपका जैसी बुक प्रिंट होके आता है ना, फर्स्ट असाइनमेंट के एंड में ऐसे 3-4 डायग्राम दिए हुए रेडीमेड, मैं एक आपको सॉल्व करके दूंगा, 2 आप लोग ऑन द स्पॉट मेरे सामने सॉल्व करोगे, फिर वापस प्रैक्टिस पेपर में ऐसे 4-5 ग्राफ्स दिए हुए। एरिया कैसे ढूंढने का समझा? अगर ये सेम क्वेश्चन मुझे पावर के टर्म्स में पूछना होता बेटा, तो क्या करता मैं? इसको हटा के P लिख देता और इसको हटा के T लिख देता। बताओ मेरा आंसर में क्या फर्क आने वाला है? कुछ नहीं ना। मैंने पहले ये फॉर्मूला यूज किया था, अभी ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है। Are you understanding the graphical meaning of work done? Are you understanding the graphical meaning of work done? Sometimes the graphical method is so fast that you look at the diagram and you can give the answer. You don't need to do any working. So make the graphs very very strong. अभी मैं ग्राफ कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स सिखाऊंगा कि what can be the graph of a straight line, what can be the graph of a circle, what can be the graph of a parabola, what can be the graph of the ellipse, and what can be the graph of hyperbola. Right? I am about to teach these graphs. But have you understood this? Super sure. Repetition required. कल का पेज एकदम अच्छे से याद है? पक्का? पेज नंबर 1 चेक करो, ये याद है आपको बराबर से? पेज नंबर 1 ये नोट्स का याद है सबको? पेज नंबर 2 मैंने अपर 1 थर्ड करवाया था, अपर 1 थर्ड, राइट? अभी मैंने 2 आर्टिकल्स करवाए। वन इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, नेक्स्ट इज वर्क डन बाय स्केलर फोर्सेस। फिर आपको एक ग्राफ दिखेगा, देखो आर यू ऑन पेज नंबर 2, द फोर्थ डायग्राम इज द ग्राफ। उसका y एक्सिस पे कौन है देखो, उसका y एक्सिस पे और x एक्सिस पे उल्टा बोला ना मैंने। y एक्सिस पहले पूछा बेटा, मैंने क्या पूछा कि उसके y एक्सिस पे क्या है? फोर्स है ना, और उसके x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, मैंने क्या ड्रॉ किया है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। आपकी बुक में प्रिंट करके क्या दिया है? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक सब कुछ दिया है। तो व्हाट यू शुड डू बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग दिस पेज, आप ये पॉइंट को ए बोलो, स्टार्ट डूइंग दिस प्लीज। आर यू ऑन पेज नंबर 2? ये पॉइंट को आप ए बोलो, ये पॉइंट को आप बी बोलो। फिर बीच में कहीं पे अपनी मर्जी से 2 पॉइंट्स लो, P एंड Q, राइट? बाद में P और Q से परपेंडिकुलर बनाओ एक्स एक्सिस पे। P और Q से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाओ। बाद में इसको शेड करो। ये जो मैंने ग्रीन पोर्शन शेड किया है ना, पूरा बड़ा पोर्शन तो उन्होंने ही शेड करके दे दिया है। तो दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। मैं ये शेडिंग किसके लिए करने को बोल रहा हूँ? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, बराबर? उसको शेड करो और शेड करने के बाद बाजू में ऐसा एरो करके लिखो DW is FDX. What is the meaning of DW? Small amount of work done in going from which point to which point? P to Q. Very good. So what is the total amount of work done? It is the work done in going from point A to B. आपको 0 से 10 जाना है तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन मैं ये बोलता हूँ 0 से शुरू किया, नो प्रॉब्लम। 10 को खत्म करने वाले हो, नो प्रॉब्लम। टेल मी द वर्क डन बाय यू बिटवीन 4 and 6। तो आई एम आस्किंग यू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क या आई एम आस्किंग यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क? समझा बेटा? लाइकवाइज टाइम साइकिल में अगर मैं ये बोलूँ कि आप ये एक्सपेरिमेंट 10 मिनट के लिए परफॉर्म करने वाले हो, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड यू विल गो अप टू 10। लेकिन मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज वर्क डन बाय यू फ्रॉम 4th मिनट टू 5.5 मिनट। मतलब आप लोग 0 to 10 नहीं लोगे, आप 4 to 5.5 लोगे।
और इस बार वर्क डन क्या होगा, इन प्लेस ऑफ F इंटू dx इट विल बी P इंटू dt, राइट। अगर आप वर्क डन फोर्स के टर्म्स में लिखते हो यूज द फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और पावर के टर्म में लिखते हो तो पावर इंटू टाइम। dw is F dx या तो dw is P dt, therefore w is Fx या तो w is pt। Is it product of two coordinates? देखो आप वर्क बोल कैसे रहे हो, आर यू सेइंग w is f into x, तो f एक कोऑर्डिनेट हुआ, x दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स इज एरिया। आर यू गेटिंग दिस? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया, पाई आर स्क्वायर में पाई इनटू रेडियस इज एरिया, बिकॉज पाई का कोई यूनिट नहीं होता है। आर यू गेटिंग दिस? अच्छे से समझा? श्योर? ओके, नाउ इफ यू हैव डन द शेडिंग पार्ट, पेज नंबर 2 पे नोट को छोड़ के सब पढ़ो, नोट को छोड़ के, नोट अभी तक नहीं हुआ है ना। मैंने बोला ऐसे में स्टूडेंट फ्रेंडली स्टाइल में, मैं बुक के स्टाइल में नहीं जाता कभी टीचिंग वाइज, इट शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली, हाउ कन्वीनियंट इट इज टू यू। नोट को खाली पेंसिल से सर्कल करके रखो, अभी तक मैंने नोट नहीं सिखाया। रिवाइज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड रिवाइज वर्क डन बाय सेवरल फोर्सेस। इसमें जब हम ग्राफ बनाते हैं तब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हर पॉइंट पे चेंज होता है, इसलिए जो बेटा आप लोगों को दोनों पॉइंट्स एकदम क्लोज ले रहे हैं। Either I should write f into dx or I should write x into dx, right? तो मैं दो पॉइंट्स इतने ज्यादा क्लोज ले रहा हूँ कि प्रैक्टिकली फोर्स बिटवीन दोनों पॉइंट्स विल बी सेम, इसलिए मैं वेरिएबल किसको रख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। आपका पढ़ के हो जाए तो मुझे बोलो। अभी जैसे आपने ये फोर्थ ग्राफ देखा ना, उसके बराबर बाजू में लिखने का, immediately after this refer the graph of page number 3। या आप अभी ग्राफ पेज नंबर 2 पे पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल सामने वाला पेज देखो। डू यू सी वन मोर ग्राफ देयर? वहां पे तो ऑलरेडी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे देखो टाइम होगा इस बार, और वाई एक्सिस पे पावर होगा। सो कैन वी से dw इज इक्वल टू p dt। ये ग्राफ में dw कौन इंडिकेट करता है? ये ग्राफ में dw कौन इंडिकेट करता है? वो स्मॉल वाला एरिया कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एरिया? PQSR। PQSR। एंड व्हाट अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन? ABCD, है ना। तो वो ग्राफ में ऑलरेडी स्मॉल एरिया प्रिंट करके दिया है, उसको आप शेड कर लो। पेज नंबर 3 में जो ग्राफ है उसमें जो स्मॉल एरिया उसको आप शेड करो, और उस स्मॉल एरिया के लिए क्या लेबलिंग करोगे बताओ? dw is PDD, राइट। सो ऐसे लिखो, एरिया ऑफ सेक्शन PQRS is dw। एंड व्हाट अबाउट एरिया ABCD? W। अच्छा, हाउ विल यू गेट W? इंटीग्रेशन dw। ऐसे स्मॉल 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 वर्क ऐड करो तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क मिलेगा कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस?
अभी पेज नंबर 2 पे नोट को छोड़ के सब हो गया. पेज नंबर 2 पे नोट को छोड़ के सब हो गया. पेज नंबर 3 पे एफिशिएंसी को छोड़ के सब हो गया. हाँ, लाइन बाय लाइन जो मैं बोलता हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ो. हाँ, you have to go slow and steady because this is totally a new mathematical thing for you. Are you done reading page number 2? Work done by variable force, work done by several forces. Note छोड़ दिया, note छोड़ दिया. Are you on page number 3 now? Check. The first title is power. Work upon time. The second title is instantaneous power. dW upon dt. Followed by units. Followed by dimension. Followed by convenient units. Kilowatt, megawatt, gigawatt, horsepower, terawatt will be 10⁻12. Yes or no? उसके बाद में ये ग्राफ मैंने अभी सिखाया. Along with the graph, read that note. All 4 points A, B, C, D. ध्यान से. ये बेचारी काम के बोझ की मार कुछ लेती क्यों नहीं? बीमार है, बीमार. ओके, डायग्राम एकदम विजिबल. लास्ट बेंच स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, राइट. मैंने y एक्सिस पे फोर्स दिया, इट इज इन न्यूटन, और मैंने x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया, इट इज इन मीटर. व्हाट यू सी हियर? ट्रायंगल. व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल? 1. What is the height of this triangle? 5. So you know how to find out the area of this. Okay. Let me call this as area 1. Let me call this as area 2. Let me call this as area 3. Let me call this as area 4. Let me call this as area 5. So area 5 तो आप सीधा 0 लिखोगे. Not possible only. Right? How will you calculate area 1? Half is the base into height. How will you find out area of rectangle? Base into height. How will you find out area of trapezium? इसका मतलब बेटा आप क्या करोगे? You will find out area 1. You will find out area 2. You will find out area 3. You will find out area 4. You will find out area 5. Then you will find out total area. Right? Total area is area 1 plus blah 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 area 5. Right? और वो आपका आंसर जो आएगा, will it not be in joule? Why will it be in joule? Because it is product of force and displacement. What will be area 1? Come on, proud of it. Is it area of a triangle? Is it half into 1 into 5 means plus 2.5? Why plus 2.5? Because both the coordinates are in the first quadrant. What is area to area of a rectangle? Is it 1 into minus 10? Yes or no? Is it minus 10? What is area 3? Area of trapezium. Area of trapezium. So what is it? Half into sum of parallel sides into height. Right? So what are the parallel sides? ये साइड हो गया 3 to 6 मतलब 3, और ये साइड हो गया 4 to 6 मतलब 2. हाइट कितना हो गया? चेक. Is it 10? Yes or no? तो my answer is 5 5s are 25 plus की minus plus. Yes or no? Next is area of triangle again. Is it area of triangle again? So is it half into base is 1 and height is minus 10 because of sign conventions. Height negative नहीं होता है, but because it is in fourth quadrant. Yes or no? So what is it? Minus 5. And finally what is this area? This is unbounded figure. है ना? Unbounded figure. Unbounded मतलब not closed. It is going up to infinity. So my answer is 0.
right? So what will be the sum total of this? What will be the sum total of this? Validity. Plus 2.5 minus 10 plus 25 minus 5 plus 0. So 27.5 minus 15 plus 12.5 joule is my answer. बराबर? ये बेटा एक सैंपल प्रॉब्लम में इसलिए लिखवा देता हूँ because when the book comes you can apply this knowledge and calculate the areas. I suggest आपके पास यहाँ पे enough blank space है ना? आपके पास यहाँ पे enough blank space है, तो आप चाहो तो प्रॉब्लम इधर कॉपी करो, सॉल्यूशन इधर लिखो, up to you, but do it here only. I am waiting for you. Can we pause the video? Stop मत करना, pause करना, गलती से भी stop मत करना please. 5 different categories: straight line, circle, ellipse, parabola and hyperbola. अभी जो मैंने 5 नाम दिए ना, they are called two-dimensional figures. They are called two-dimensional figures. First graph, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होगा? आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होगा? If y is directly proportional to x, if y is directly proportional to x or vice versa, then your graph is a straight line passing through origin. If your graph is like this, then it is y is equal to mx plus c. If your graph is like this, then y is equal to mx minus c. अब ये सबका मतलब समझो क्या होता है. If I give you y is equal to 2x, मैं एक एक ग्राफ एक्सप्लेन करते जाऊंगा. Does it mean y is directly proportional to x? x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा? ध्यान से सुनो. कैसे बढ़ेगा? ध्यान से सुनो. If x के वैल्यूज में ले रहा हूँ 1 2 3 4, तो y के वैल्यूज में क्या लूंगा? 2 4 6 8. बराबर? तो ये जैसे बढ़ेगा ना, ये एग्जैक्टली उसका डबल होगा. ये एग्जैक्टली उसका डबल होगा. दैट मींस दिस ब्लू ग्राफ व्हिच यू सी इज ऑफ द टाइप y is equal to mx, और m को बोलते हैं स्लोप. m को बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ. m को बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट इज y रीडिंग अपॉन x रीडिंग. Now tell me which is better, y upon x कि dy upon dx? आज के बाद बेटा याद रखने का, स्लोप का मतलब dy by dx. स्लोप का मतलब चेंज इन y रीडिंग अपॉन चेंज इन x रीडिंग. अब मान लो ये इक्वेशन में ऐसे लिखता, y is equal to 2x plus 1. तो बेटा ये 3 हो जाता, ये 5 हो जाता, ये 7 हो जाता, ये 9 हो जाता. मतलब अब भाई एग्जैक्ट डबल नहीं हो रहा है, डबल करके ऐड 1, डबल करके ऐड 1. तो जो ऊपर वाला रेड ग्राफ है ना, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट. क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट. y x का डबल तो है ही, प्लस 1 1 ऐड करते जाना है, प्लस 2 2 ऐड करते जाना है, प्लस 3 3 ऐड करते जाना है. मान लो बेटा ये माइनस होता, तो ये इधर माइनस होता, ये माइनस होता, ये माइनस होता, ये माइनस होता. मतलब अभी क्या है? डबल करके -1, ट्रिपल करके -1, समथिंग लाइक दैट. सो दिस ग्रीन इक्वेशन व्हिच यू सी, द ग्रीन ग्राफ व्हिच यू सी इज ऑफ द टाइप y is equal to mx minus c. ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ना बेटा, ये रेड, ये वैल्यू +1 था, और ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं that is -1. Are they on y-axis? So they are called y-intercept, right? Y is equal to mx is an equation of a straight line passing through origin. What is it? Y is equal to mx is an equation of a straight line passing through origin. Y is equal to mx plus c is an equation of a straight line not passing through origin having positive y-intercept. Having positive y-intercept. Y is equal to mx minus c is an equation of a straight line not passing through origin negative y-intercept. समझा बेटा? ये y is equal to 2x हो सकता है, ये y is equal to 5x हो सकता है, ये y is equal to half x भी हो सकता है.
मैंने बेटा इधर 2 4 6 8 लिख दिया और इधर 1 2 3 4 लिखा, क्या फर्क पड़ा? एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट का सम मेनी टाइम्स है, सम मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? स्लोप टाइम्स। एम को क्या बोलते हैं? स्लोप। यस और नो? इसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना वो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा मैं एक ग्राफ ये देता हूं आपको और एक ग्राफ ये देता हूं, तो ये दोनों में से ज्यादा स्लोपी कौन है? ये वाला। रीजन, इसने इतना ही एंगल बनाया खाली और इसने इतना एंगल बनाया। सोचो आप ये इंक्लाइन पे चढ़ रहे हो और अभी आप ये इंक्लाइन पे चढ़ रहे हो, तो ज्यादा स्लोप किधर है? अच्छा, आप इधर चल रहे हो, इधर स्लोप इज 0, स्लोप इज समथिंग, स्लोप इज समथिंग, स्लोप इज infinity. Very good. How will you climb this way? Can you climb on this wall? Can you walk on the floor? Very easily. Slope is 0. Can I say when you start walking on the slope, it is difficult? You will burn more calories. When you walk on this slope, will it be more difficult? Right? When it is really slopey, it is very difficult. It is very easy to drive car here. Difficult. You need very powerful car with powerful pickup, powerful brakes, right? Tremendous control. Otherwise, your car will lose contact and you will slide down. Logic समझा? This is slope. This is slope. Very good. This is slope. अभी इसका भी लॉजिक सुनो, इसका भी लॉजिक सुनो। इसका स्लोप 0 क्यों है? For a point lying on x-axis, y coordinate is 0. For a point lying on x-axis, y coordinate is 0. अभी आपने स्लोप क्या बोला है? y upon x. y coordinate 0 है. This is a point lying on x-axis. तो इसका y coordinate 0 है. So what is 0 upon anything? 0. Now this is the point lying on y-axis. तो इसके लिए x coordinate 0 है. Right? So what is something upon 0? समझा बेटा? बहुत है ना, सच्ची में बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तेरे को। Get up. Last bench. Yes. Get up. तू 10-12 मिनट लेट आया पहले तो, और अभी भी तू सो रहा है। तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, तू मेरा दुश्मन थोड़ी है। हाँ? You are younger than my son's age. Why will I be unnecessarily having that mental block for you? But this is not good for you. Don't worry, you are not recorded. The camera is in front of me, not in front of you. पढ़ाई करना है ना तो फोकस रहो प्लीज। चलो बैठो। समझा? तीनों ग्राफ का मतलब समझा? इसका स्लोप क्या? अगर मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको ऐसे देता, which is in alignment with x axis, इसका स्लोप क्या? अच्छा, इसका स्लोप क्या? इसका स्लोप क्या? इसका स्लोप क्या? That is the graph parallel to x axis has y coordinate 0, therefore the slope 0. अच्छा, इसका स्लोप क्या? इसका इंफिनिटी, इसका लॉजिक समझा? श्योर? आर यू ऑन पेज नंबर, कोई तो एक पर्टिकुलर पेज पे सिर्फ ग्राफ दिया, ध्यान से देखो। पेज नंबर 7 में भी, ओ फैबुलस, 6। अभी मैंने आपको जो ग्राफ एक्सप्लेन किया, राइट? अच्छा, ये ग्राफ स्पेसिफिकली मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी उसके सबके लिए है। आर यू ऑन पेज नंबर 6 बॉटम? ये आपको सिर्फ तब तक लिखना है जब तक आपके हाथ में बुक नहीं आ जाता। जैसे ही बुक आ गया ना, और अगर ये हैंड रिटन पार्ट्स में, तो मैं बोलूंगा कि तुम उसको कॉपी करो। फिलहाल ये पार्ट कॉपी करो। पेज नंबर 6 का बॉटम पे थोड़ा स्मॉल हैंड राइटिंग्स में करना, बिकॉज वी हैव टू एकोमोडेट 5 ग्राफ्स: स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो ये आपका अभी फर्स्ट ग्राफ है खाली। Last bench students, all fonts visible, all colors visible.
Shall I do one thing? Shall I explain all these graphs to you first, and then you can copy आराम से, है ना? Stop it. ये straight line graph हो गया. Circle कब आएगा? When the equation is of the type x square plus y square is r square. If I am giving you circle, that means this becomes x-axis, this becomes x-axis, this becomes y-axis. सोच के बोलो बेटा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है? Is it x, 0? बराबर? For a point lying on x-axis, y coordinate is 0. सोच के बोलो, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? I am so proud of you. Very nice. इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? -x, 0. इसका 0, -y. इसका x, y. Am I right? अभी एक चीज ऑब्जर्व करो, जब आप इधर से इधर जाते हो, राइट, व्हेन यू गो फ्रॉम से पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट, व्हेन यू गो फ्रॉम ए टू बी, व्हेन यू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, डू यू एग्री विथ मी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कम होते जाता है और वाई कोऑर्डिनेट बढ़ते जाता है. अल्टीमेटली जब आप बी पे पहुंच गए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट हाईएस्ट हो गया. लेकिन इससे ये साइज को कुछ फर्क पड़ा, ये साइज को कुछ फर्क पड़ा, ये साइज को कुछ फर्क पड़ा. इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y कम होगा, such that this equation will always be obeyed, and the equation is x square plus y square is r square. मतलब x का साइज कम होगा तो y का साइज बढ़ेगा, y का साइज कम होगा तो x का साइज बढ़ेगा, such that r का साइज हमेशा कांस्टेंट रहेगा. Now look at the beauty of this. Look at the beauty of this. ये इक्वेशन आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है. याद करवाता हूं. ये पॉइंट अगर p x, y है और मैं बोलता हूं कि बेटा ये कोई तो एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर का नाम क्या है? आर वेक्टर, रेडियस वेक्टर. अच्छा, ये वेक्टर आप लिखोगे कैसे? विल इट बी x टाइम्स i प्लस y टाइम्स j? कैसे लिखा बताओ? आप लोगों ने इधर से एक परपेंडिकुलर बनाया होगा, इधर से एक परपेंडिकुलर बनाया होगा. ये इसका एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है. ये कौन सा कंपोनेंट है? therefore xi. ये कौन सा कंपोनेंट है? yj. पक्का? टेल मी हु इज दिस? मतलब रेडियस वेक्टर. मुझे इसका साइज बताओ. इसका साइज क्या है? r is root of x square plus y square. Squaring, I get r square is x square plus y square, which is equation of a circle. So what is equation of a circle? X square plus y square is r square. Circle is 2 dimension की 3 dimension? Because z आया ही नहीं. हाँ, ये भी हो सकता था. y square plus z square is r square. मतलब वो सर्कल आपने ये वॉल पे बनाया, तो फिर उसमें x नहीं आएगा. It will be combination of two coordinates. X square plus y square is r square. Y square plus z square is r square. X square plus z square is r square. Right? So circle is 2-dimensional figure. ये मैं जितने भी डायग्राम्स बना रहा हूँ, ये किसके लिए बना रहा हूँ? 2-dimensional geometry. क्या बोलते हैं इसको? 2-dimensional geometry. Please let me know. Second graph समझा? Second graph समझा? अभी थर्ड में 2 टाइप्स है. थर्ड में 2 टाइप्स है, इसलिए मैं एक ही में बनाता हूं. द थर्ड ग्राफ इज पैराबोला. द थर्ड ग्राफ इज पैराबोला. अच्छा, पैराबोला में 2 टाइप्स है. इट में बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, इट में बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. This is y-axis, this is x-axis. Parabola could be this
पैराबोला कुड बी दिस। तो ये पैराबोला कब आता है? when y square is proportional to x। और ये पैराबोला कब आता है? when x square is proportional to y। ये पैराबोला कब आता है? y square proportional to x। प्रूफ करके देता हूं। if y square is proportional to x, इसका मतलब x is proportional to y square। तो मैं इधर y के वैल्यूज लिखता हूं 1 2 3 4। हाँ, y is 1, y is 2, y is 3 and y is 4। x क्या हो जाएगा? 1 4 9 16। यस और 1 4 9 16। अब मैं ये प्लॉट कर रहा हूं। 1 2 3 1 4 9 1 1 2 4 3 9। तो ये ऐसे कंप्लीट होगा कि नहीं बेटा? और बाद में नीचे की साइड पे उसका मिरर इमेज ड्रॉ करने का। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू विजुअलाइज? बुक में डायरेक्ट प्रिंट करके देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं टेबल बना के दे रहा हूं। अब सपोज मैं x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y लिखता हूं, x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y लिखता हूं, राइट? इसका मतलब मैं इसको 1 2 3 4 लिखूंगा। किसको? x को। तो y क्या होगा? 1 4 9 16, राइट? करके देखते हैं। x is 1 2 3 4 1 2 3 4। This will be 1 4 9 somewhere here। तो 1 1 2 4 9। तो ये ग्राफ ऐसे होगा कि नहीं? फिर आप उसका जब मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसे होगा कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पैराबोला में दो स्टाइल में हो सकता है। इट मे बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, इट मे बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब याद कैसे रखने का कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस कब आएगा और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस कब आएगा? वेरी सिंपल टेक्निक। ये लोग बुक में नहीं लिखते हैं। आउट ऑफ x एंड y जिसका कोऑर्डिनेट 1 है, राइट? द पैराबोला इज सिमेट्रिक। पैराबोला इज सिमेट्रिक about that axis whose coordinate has power 1। x और y में किसका पावर 1 है? x का कि y का? That's why it is symmetric about x axis। You can see that। x और y में किसका पावर 1 है? y का। इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट दैट एक्सिस। ये मैंने इधर स्टार मार्क किया, ये स्टार का मीनिंग है। सो पैराबोला इज दिस आल्सो एंड पैराबोला इज दिस आल्सो। अच्छा, समटाइम्स टू कंफ्यूज यू दे विल डेलिबरेटली नॉट प्रिंट दिस। ये भी पैराबोला जानबूझ के उसने हाफ पार्ट है ना हाइड कर दिया। उनका आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दे रहा हूं। Velocity can be negative, but kinetic energy is half mv square. It is a scalar. तो velocity can be negative, but square of velocity cannot be negative. तो लोग ये नेगेटिव साइड पे ग्राफ ही नहीं देंगे, राइट? ये ग्राफ ही नहीं देंगे वो लोग। और इतनी हद तक कि ये भी प्रिंट करके नहीं देंगे। सोचो, ये भी प्रिंट करके नहीं दूंगा मैं। तो दिस ग्राफ इज स्टिल पैराबोला। और जब हाफ पैराबोला दिखता है ना, तो उसका मिरर इमेज विजुअलाइज करने का कि इसका मिरर इमेज अगर मैं कंप्लीट करता या तो करती तो ये कैसा दिखता? ऐसा दिखता कि नहीं? ऐसा दिखता कि नहीं? सो दिस इज पैराबोला। अंडरस्टूड क्या बोला? दिस इज पैराबोला। अंडरस्टूड क्या बोला? दिस इज, यू आर गोइंग टू कैच दिस, दिस इज पैराबोला, राइट? दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ये मैंने मिसाइल फेंका, ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर गिरा, राइट? टारगेट को हिट किया। तो अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड था तो इधर जाने में 5 सेकेंड लगा, इधर जाने में 5 सेकेंड। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, therefore time of flight, right? So this is parabola। ये मैंने जानबूझ के आपको हाफ पैराबोला दिया कंफ्यूज करने के लिए, राइट? लेकिन उसको विजुअलाइज करते तो कंप्लीट पैराबोला होता कि नहीं? यस एवरीवन।
ग्राफ नंबर, इसको मैं 3 ही बोलूंगा क्योंकि उसके 2 पार्ट्स है, राइट। ग्राफ नंबर 4 एलिप्स, ग्राफ नंबर 4 एलिप्स, this is going to be the graph, this is going to be the graph, either this can be ellipse or even this can be ellipse. इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, चेक करो, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, राइट। तो अगर बेटा एक पॉइंट में ये लेता हूं और एक पॉइंट ये लेता हूं, तो इसमें पावरफुल कौन है? x कोऑर्डिनेट ज्यादा है कि y कोऑर्डिनेट? तो इसमें इक्वेशन आता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1, where a and b are constants. A and b are constants. For example, x square upon 25 plus y square upon 16 is 1. तो 25 क्या हुआ? 5 square. 16 क्या हुआ? 4 square. मतलब a square is 25, therefore a is 5. b square is 16, therefore b is 4. अभी सोचो, थोड़ा दिमाग अप्लाई करना, कॉमन सेंस अप्लाई करना। इसको मैंने 16 लिखा और इसको मैंने 25 लिखा, तो इसके हिसाब से ये एलिप्स करेक्ट है कि रॉन्ग है? वेरी गुड, बिकॉज मुझे यहाँ पे x ग्रेटर देन y दिख रहा है। तो जब x ग्रेटर देन y दिखेगा तो x का नीचे वाला बंदा y के नीचे वाले बंदे से ग्रेटर दिखना चाहिए। अगर मैंने ये लिखा ना ये, तो बेटा वो एलिप्स ऐसा दिखेगा। समझा कि वापस बोलो? आपको यहाँ पे कौन ज्यादा दिख रहा है साइज में? x, बराबर। तो x का जो नीचे का पार्टनर है ना, वो y के पार्टनर से ज्यादा होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? और ये मैंने जानबूझ के नंबर क्यों लिख के दिया, ताकि आपको समझ में आए कि a and b आर नंबर्स, x and y आर वेरिएबल्स। ग्राफ में x और y, we plot the graph of y versus x. समझा? This is called ellipse. This is called ellipse. ये मैंने बोल्ड लेटर्स में जो नाम लिखा है ना, that is the name of the 2-dimensional figure. Parabola, circle, straight line. Where are you? Straight line, circle, parabola, ellipse. Now the last graph is hyperbola. Right? हाइपरबोलिक ग्राफ ऐसा होता है। हाइपरबोलिक ग्राफ ऐसा होता है। ये ऐसा, and the equation is x square upon a square minus y square upon b square is 1. मतलब आप ये इक्वेशन को एलिप्स के साथ कंपेयर करोगे ना, एकदम माइनर सा फर्क है। व्हाट इज दैट माइनर सा फर्क? माइनस साइन। हाइपरबोला समझा? इसमें एक स्पेशल टाइप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें एक स्पेशल टाइप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। When something is inversely proportional to something, तो ये ग्राफ आता है। आप लोगों ने बॉयल्स लॉ सुना है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सुना है? सब लोगों ने सुना है? फैंटास्टिक, राइट? व्हेन x is inversely proportional to y, तो फिर वो ग्राफ ऐसा होता है। This is x axis, this is y axis. जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y कम होता है, बराबर। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूं तो ये ऐसा दिखता है, और इसको अगर मैं 45 डिग्री से घुमाऊं तो ये ऐसा दिखता है। ये ग्राफ ऐसा देख रहा हूं ना मैं, अभी मैं ऐसा देख रहा हूं तो ऐसा दिखता है। So this graph also is hyperbola. When something is inversely proportional to something, you get hyperbola. Right? तो actually ये main है, ये उसका special type है, right? But still I am giving separate title to this because you will come across this kind of equations every now and then. इधर मैं example लिख रहा हूँ. For example, Boyle's law. For example,
Boyle's law. Yes, everyone? Sure? Please let me know. Repetition. अभी तक मैं जो भी कर रहा हूँ ना, these are the mathematical tools, most wonderful mathematical tools, derivatives, mathematical tool, integration, mathematical tool, graph, mathematical tool, and trust me, ये जो भी मैंने सिखाया ना, this is not my chapter, this is my subject, पूरा physics में आएगा ये सब. तो अब ये जो आप लास्ट 2 दिन से पढ़ रहे हो ना, yesterday and today, throughout health. So can you repeat ellipse? Can you repeat ellipse? Ellipse मतलब the x coordinate and y coordinate are not same. सर्कल को अगर मैंने टेढ़ा कर दिया, खाली इमेजिन करो बेटा, इधर देखो. मान लो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता, मान लो ये रबर का रिंग होता और मैं ऐसे करता तो ऐसे दिखता, या तो मैं ऐसे करता तो भी ऐसे दिखता. Here x coordinate and y coordinate, here they are same, here, right? लेकिन जब मैं ऐसे एलिप्स को स्ट्रेच करता हूँ, then x coordinate is bigger than y, और ऐसे करता हूँ तो y is bigger than x. Got it? That's why my equation is not x. 1 मिनट ध्यान से सुनो, stop writing, मस्त क्वेश्चन देता हूँ. Therefore x square upon a square plus x square upon a square plus y square upon b square is 1, where a is not b. अभी सोच के बोलो, if a is b, सपोज बेटा ये और ये साइज सेम हो जाए तो फिर, क्योंकि अभी हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1. तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1 मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर. तो मैं आर के बदले ये बोल रहा हूँ, रेडियस को मैं ए नाम दे रहा हूँ. लॉजिक समझा? व्हेन दिस इज नॉट दिस एलिप्स, व्हेन दिस इज नॉट दिस एलिप्स, बट व्हेन दे आर सेम. कभी समझा? प्लीज कॉपी. And today we will stop here. Right? What I was teaching you right now was little background of page number 6 का graphs. Will you please stop the recording? Stop the recording.